Hello and welcome to Mifate Tutorials. Today we are going to discuss about the concept of behavioral neuroscience. Yesterday we have discussed about behavioral neuroscience and the brain chemistry. That's it. Okay. मैंने इतना ही बताया था. Today we are going to and also the key principles and assumptions of neuroscience. So today we are going to discuss why do we need to study behavioral neuroscience. The modern form of neuroscience we use is MRI or CT scan, right? But thousands of years ago, the Egyptians used to remove the brains from the body in the mummification process. Yes, it's absurd, I know. But the mummification process is they somehow like remove the brains from the body when the patient used to alive. This doesn't mean you are going to do this because now it's completely vanished and we still don't know the process. It might be happening there in Europe still, in the Egypt, but now it doesn't happen. So basically what they used to do, they used to remove the brain, which helped them to study the brain more more precisely और अच्छे से पढ़ने को मिलता था because brain सामने होता था तो वो basically सारे nerves को सबको बहुत easily watch करके देख पाते थे जब body मतलब लोग जिंदा होते थे. तो वो एक ममिफिकेशन प्रोसेस होता था जिसमें वो ऐसा करते थे. बट इन द मॉडर्न फॉर्म वी हैव MRI machines, we have CT scan machines which gives us the direct and the exact position of our brain, and you can just by clicking on the computer screen you can just get to know the information. So we do not use it anymore, but I am telling you the history, okay, how they used to do it. Okay, so yes, the reason why we should invest so much time and efforts into uncovering the structure of the brain is because the brain itself is responsible for the human behavior. If we say that the external factors are the only reason why of our behavior and our personality, that is not true. When we talk about the personality and our behavior, our external factors plus our internal factors both combines, and that helps us to behave in a any way or like in a proper manner, right? So for example, you have seen people getting triggered very easily. You might have seen people जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वजह हो ना हो किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है. फिर देन यू ऑल्सो माइट हैव सीन पीपल जो बहुत शांत होते हैं बाय नेचर. उनको छेड़ो, उनको आप कितना भी बोलो, कुछ भी कहो, उन्हें उतना गुस्सा नहीं आ रहा होता है ना. तो इवेंचुअली एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब अगर मैं हूँ, आपने स्टैंड अप कॉमेडीज अगर आप देखते हो तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको स्टैंड अप कॉमेडीज कर रहे होते हैं और वो सामने वाले बैठे वाले लोगों को, ऑडियंस को या आपस में एक दूसरे को कई बार काफ़ी ज़्यादा डिमीन करते हैं, राइट. बट दे टेक इट एज अ जोक ओनली कि ठीक है भाई, तुम मेरे ऊपर जोक मारो, मैं तुम्हारे ऊपर जोक मारता हूँ. बट दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको डिमीन करना तो दूर की बात है, आप कुछ नॉर्मल बात भी कर रहे हो तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो और वो उस बात का बुरा मान जाते हैं. तो अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर सेम था, बट कहीं ना कहीं उन दो लोगों, इस तरह के दो लोगों के बीच में उनका इंटरनल फैक्टर्स अलग अलग थे. इंटरनल फैक्टर्स मतलब उनका ब्रेन को चीज़ों को लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है ना, जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ. एक ट्रिगर हुआ और एक ने जोक की तरह ले लिया बात को, राइट. तो दोनों सिचुएशंस में एक्सटर्नल फैक्टर्स सेम थे लेकिन इंटरनल फैक्टर्स अलग होने की वजह से बिहेवियर और पर्सनैलिटी में चेंजेस आए. तो दिस सिंपली मीन्स कि ब्रेन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर. ओके. Behavior is commonly used in the reference of action, both purposeful or unintentional in this field. आप जब बिहेवियर की बात करते हो तो आपका बिहेवियर किसी भी सिचुएशन को लेकर आपने पर्पसली किया हो या फिर अनइंटेंशनली हुआ हो, बट वो आपके बिहेवियर में काउंट होता है.
होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हम अनइंटेंशनली कुछ इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं जो हमें मालूम भी नहीं होती, जब बाद में कोई बता रहा होता है तो हमें भी डाउट हो रहा होता है कि यार दिस इज़ नॉट माई नेचर, how do I react, like why am I reacting like this, or why how I am supposed to react like this. तो basically वो आपका behavior है, तो आप पर्पसली करो या अनइंटेंशनली करो, आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में उसे काउंट किया जाएगा. ओके, अनदर कंसिडरेशन, जब जब बात बिहेवियर न्यूरोसाइंस की होती है तो हम हमेशा जो हम फोकस करते हैं छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर. जो बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है वो छोटी डिटेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, बड़ी चीज़ों को छोड़ देता है. मतलब कि जो बिहेवियर न्यूरोसाइंस से रिलेटेड लोग हैं, जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें बिहेवियर ठीक करना है तो हमें उसके ब्रेन को स्टडी करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो गो फॉर सम इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन, बट देन वी आर समवेयर स्किपिंग द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि उसको एक्चुअली हो सकता है कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ ट्रिगर कर रही हो. ज़रूरी नहीं है कि उसका नेचर अग्रेसिव हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज़ उसके साथ बार बार हो रही हो. फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैट को लें, कैट बेसिकली बहुत अच्छे से रहती है, प्यार से रहती है, उसको प्यार करते रहो वो आपके साथ प्यार करती रहेगी. बट कभी कभी कुछ लोग, आपके पास अगर कैट होगी, आपने देखा होगा, दे कीप ऑन टीजिंग द कैट, एंड इवेंचुअली द कैट का जो रिफ्लेक्स होता है वो यही होता है कि वो उसे काटने लगती है. तो बाय नेचर कैट का वो नेचर नहीं है कि वो काटे ही गी, लेकिन अगर आप उसको बार बार टीज करोगे तो वो काटने वाली बन जाती है और ट्रिगर हो जाती है, और उसके बाद से वो कई बार अनइंटेंशनली भी स्क्रैचेस कर देती है, हिट कर देती है लोगों को. एंड पीपल आर लाइक हाउ शी वाज रिएक्टिंग वेरी वेल, शी वाज बिहेविंग वेरी वेल, नाउ ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज आपने उसको ट्रिगर किया बार बार. तो इट माइट पॉसिबल. तो जो बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है ना, वो ब्रेन को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, स्मॉल डिटेल्स को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, बट देन वी आर स्किपिंग द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स. दैट एक्सटर्नल फैक्टर की रिफ्लेक्शंस भी हो सकती हैं, प्लस ओनली योर न्यूरोसाइंस, ओनली योर ब्रेन डजेंट हेल्प, लाइक your brain plus the environmental factor both reacts and then you behave or you have a particular personality. Okay, getting my point? So next we will talk about okay, this is the picture of neurotransmitters. Have I taught about neurotransmitters? No, not yet. Wait, sorry. Let's talk about neurotransmitters first. What is neurotransmitters? Anybody who knows what is neurotransmitter? No, not it. Ma'am, Yes, yes, Neelu. Neurotransmitters. Okay, it's a here Wait, only. wait, wait. I'll ask you. Yes, Neelu. ma'am, I am Hmm. confused about the concept of neuroplasticity. You're, what is you want to know what is neuroplasticity? Basically ये होता है कि हम वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ हमारी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, साइंस says that every 7 years your personality changes, विच इज समहाउ, अगर आप अपने आप को देखें तो चेंज होता है, आपको खुद को भी नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द वे यू यूज टू बिहेव व्हेन यू वर 5 years old, you didn't used to behave the same way when you were 15, and then you also didn't used to behave the same way when you were 25, right? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, सॉरी, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज बेसिकली द चेंजेस हैपन बाय द टाइम गोज ऑन. ठीक है, जो न्यूरॉन नेटवर्क्स के अंदर आपके चेंजेस आ रहे होते हैं. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. और कहीं ना कहीं न्यूरो साइंस जो है वो इस चीज़ को भी निगलेक्ट करता है कि वक्त के साथ साथ हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको वो भी चेंज होने चाहिए. Right? If I am 25 years old and I behave like a 5-year-old girl, that won't look good on me. But if a 5-year-old girl also behave like a 25-year-old woman, then she will also not look good. Right?
ट्रू। तो आप की जो एज है उस एज के हिसाब से बिहेव करना भी इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ADHD, बेसिकली लाइक ADHD वाले जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर, दे बिहेव ईदर, उनकी जो एज ग्रुप है उससे या तो वो बहुत नीचे वर्क कर रहे होते हैं या वो बहुत ऊपर वर्क कर रहे होते हैं. उनकी बातों से ऐसा आपको फील होगा दैट ईदर दे आर वेरी स्लो, the brain growth is very slow, or either their growth is way too much. मतलब ऐसा हो सकता है कि 7 साल की बच्ची है लेकिन बात वो 10-12 साल के बच्चे के हिसाब से कर रही है. ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि 7 साल की बच्ची है लेकिन वो बिहेव बिल्कुल 2-3 साल वाले बच्चों वाला कर रही है, और वो चाह रही है कि उसी तरह का उसको जो 2-3 साल के बच्चों के साथ आपका व्यवहार है वही व्यवहार वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी वही है, विच इज नॉट राइट. When you are 7 years old, people will treat you like a 7-year-old kid. ठीक है. I cannot treat you like an infant. राइट. सो जो न्यूरो साइंस है उसके अंदर इन चीज़ों को भी रखा जाता है कि आखिर अगर कोई बच्चा है, नो सॉरी, बिहेवियरल न्यूरो साइंस में इन चीज़ों को स्किप किया जाता है. तो हमारा ये लाइक जो साइकोलॉजी है इट सेज कि इन चीज़ों को स्किप नहीं किया जा सकता. न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्किप नहीं किया जा सकता. हम जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको स्किप नहीं कर सकते. व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट साइकोलॉजी और बिहेवियर और पर्सनैलिटी, वी हैव टू कीप इन डिटेल्स विथ एवरीथिंग. ओके. यस आकृति, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? Thank you. It's already OD. Actually, neurotransmitters are chemical Thank you, ma'am. messengers. They carry all the informations from nerves to glands or muscles, or like they are released generally in the synapses of where axons, and actually it's about the chemical messengers. Okay. Mm. बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है. केमिकल्स के अलग अलग नाम हैं. तो बॉडी के अंदर प्रैक्टिकली बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. As you can see, the human brain contains over 80 billion neurons. It's just the human brain contains over 80 billion neurons. तो जो न्यूरॉन्स हैं उनको जब वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है. उस केमिकल को हम एक बेसिक साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ठीक है. तो these cells make up the information network within the brain and other component of the nervous system, including the spinal cord. Neurons are electrically excitable. This means that when they are exposed to an electrical impulse, they trigger nearby cells to act. For example, can you see this needle in my hand? Can you see this needle in my hand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now what happens if I like do this with my with the needle in my hand? What will happen? अगर मुझे ये needle all of a sudden मेरे उंगली पर लगेगी तो मुझे एक sensation feel होगा यहाँ पे कि मुझको कुछ चुभ रहा है, और मैं automatically उसको हटा दूंगी, उंगली को हटा दूंगी अपनी. राइट. तो जैसे ही आपके साथ छोटी सी छोटी चीज भी होती है आप फौरन बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो, आपको फील होता है. तो इस चीजों के बीच में, मेरे इस यहाँ से रिएक्ट करने के बीच में यहाँ तक पता चलने के बीच में बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हुए. ठीक है. क्योंकि मैंने यहाँ पे माई ब्रेन मस्ट बी वर्किंग. राइट. दिस इज वाई व्हेन आई डिड लाइक दिस आई कैन फील इट. राइट. अगर मेरा ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता तो आई कुडंट बी एबल टू फील इट. या तो मुझे ये सेंस नहीं होता कि फील तो हो रहा है लेकिन इसको हटाना है. ठीक है. तो कुछ भी हो सकता है. ये हो सकता है कि अगर आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो
अगर आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो ये हो सकता है कि भाई मुझको ये फील ही नहीं हो रहा। दूसरा, अगर ये फील हो भी रहा है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको हटा देना चाहिए अगर मुझको लाइक करंट लगता है या फिर मुझे कोई निडल से चोट लग रही है तो ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन जब यहाँ लगा, यहाँ पहुँचा और मैंने वापस हटाया, तो यहाँ से जाके यहाँ आने में और यहाँ से वापस इंफॉर्मेशन लाइक मैसेज यहाँ आने तक में के बीच में बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड कैन यू थिंक दीज केमिकल्स की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी? क्योंकि जनरली जब हमें चुभता है, अभी तो मैं जानबूझ के कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं उतनी तेज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हमें अचानक से कोई चीज़ चुभती है तो द मोमेंट इट like we do this and we just go for this within a span of seconds, not even seconds, milliseconds I guess, right? हम उसको लगते ही हटा लेते हैं फौरन। क्यों? तो सोचो कि कितनी स्पीड से हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है और ब्रेन जो है वो उतनी ही स्पीड से वापस इंफॉर्मेशन मैसेज भेजता है कि यू हैव टू लाइक अपना हाथ हटाना है उधर से। तो इस पूरे उसके बीच में बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑल न्यूरॉन्स लाइक वो आपस में एक दूसरे से ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते जाते हैं ब्रेन तक, और फिर वो ब्रेन वापस से जब मैसेज भेजता है तो वो वापस वाइब्रेशन आती है, ठीक है। और उसको हम तो जो इस वाइब्रेशन के बीच में से जो होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, क्योंकि वो केमिकल होता है ना। आई विल शो यू द पिक्चर to make you understand more better way. So see, ये ऊपर वाला एक न्यूरॉन है, नीचे वाला दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। where is my mouse? Okay, this is one neuron, this is another neuron, okay। इसके बीच में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, छोटे छोटे ग्रीन ब्लू जो भी हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूरॉन इससे लड़ता है, इस तरह से सपोज ये सारे न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एंड द मोमेंट यहाँ से ये वाला इधर जाता है, ये अपने जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो रिसेप्टर्स को देते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, these are the neurotransmitters, these if you can see my mouse, okay, focus on my mouse, these are the neurotransmitters, right? These are the receptors, इसको रिसेप्टर कहते हैं, जो ये चिमटे की तरह बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको जिससे रोटी पलटते हैं आपके वहाँ, तो इसको रिसेप्टर कहते हैं, इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आप रिसेप्टर के पास जाते हैं, और इसी तरह से फिर रिसेप्टर नीचे वाले न्यूरॉन को भेजता है, और इसी तरह से होते 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 वो सब ब्रेन के पास आता है, ब्रेन इन्फॉर्मेशन भेजता है और वापस ये सब इधर आते हैं, एंड देन दे इन्फॉर्म, दे गिव बेसिकली गिव द मैसेज कि हमको वहाँ से उंगली हटा देना चाहिए, ओके। So this is the picture of neurotransmitters. These are the chemicals which are known as neurotransmitters. So basically ये neurotransmitters हमारी बॉडी में exist कर रहे होते हैं, और हम ये decide जब ज़रूरत होती है इन neurotransmitters की, तो वो receptors के पास जाते हैं और receptors उन्हें information देता है कि अभी इस situation में ऐसा करना है आपने, okay? Got it everybody? Clear, ma'am. Okay. Shall we move to the next slides now? Let's talk about the neurons. Now, what is neurons? Who will tell me what is neuron? Neurons are the small nerves that is found in our brain. They are the functional unit of nervous system. Functional unit. Okay. Yes, Parvati. अच्छा, आपका माइक गलती से खुल गया था। ओके, सो न्यूरॉन्स वो नर्व्स, बॉडी के अंदर जो भी नर्व्स हैं वो उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास दैट देर आर ऑलमोस्ट ओवर 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन। बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर over 80 billion neurons हमारे available हैं. So there are many types of human neurons, neurons in the human body.
जिसमें से एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुली जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और उसके बाद से होता है एक वो जो मैसेज रिसीव कर रहा होता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इंफॉर्मेशन देना जब ब्रेन को, ओके, और ब्रेन के बाद से जब ब्रेन वापस से जब मसल मूवमेंट के लिए रिजल्ट का देता है तो उसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो मैं बताती हूँ, इस पे आते हैं, ठीक है। सपोज ये वाले न्यूरॉन पे मैंने हिट किया था निडल से, इस वाले पे, सॉरी, इस वाले न्यूरॉन पे मैंने हिट किया था, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इस वाले न्यूरॉन पे हिट किया था तो ये वाला न्यूरॉन जो है ये, इसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि इसने सेंसेशंस ली, राइट। फिर इसको मैसेज दिया, इसने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी कि आपको मसल मूवमेंट करनी है। मसल मूवमेंट मतलब वहां से उंगली को हटाओ, दिस इज माय मसल्स, राइट। तो वहां से उस पर्टिकुलर मसल को हटाओ, ये मूवमेंट के लिए ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी। तो ये क्या हुआ, ये मोटर न्यूरॉन हुआ, ठीक है। तो जो वापस वापस इंफॉर्मेशन देता है, मैसेज वापस लाता है ब्रेन के पास से, उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। Now the neuron is made up of soma, axon and dendrites, ठीक है। न्यूरॉन किससे बनता है, एक सेल बॉडी से बनता है जिसको सोमा कहा जाता है, उसके अंदर एक एक्सन्स होते हैं और एक डेंड्राइट्स होते हैं। मैं भी दिखाती हूँ वो कैसे दिखते हैं। ऐसा दिखता है न्यूरॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन है। इस पार्ट को हम डेंड्राइट कहते हैं, इस पार्ट को हम एक्सन कहते हैं, ओके। ये वाला पार्ट आपका जो है वो बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है, और ये वाला पार्ट आपका सेंसेशंस को लेता है। ये वाला पार्ट आपके ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाता है, फिर वापस वहां से मैसेज लाता है और आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ओके। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम डेंड्राइट कहते हैं, जिसमें से इस पार्ट को, सिर्फ ये जो ग्रीन पार्ट है इसको सेल बॉडी कहा जाता है, जिसके बीच में न्यूक्लियस है। देन दिस इज एक्सन, एंड यू डोंट नीड टू ऑल नो ऑल दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूरॉन्स का बॉडी के अंदर ये रोल है कि वो हमें सेंसेशंस को पहचानने में, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं, जो भी बॉडी मूवमेंट हो रही है, उस तक मैसेज ब्रेन, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मेरे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी कि मैं ये क्लॉव्स को अपने अपने पाम को ऐसे ऐसे करूं, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है, ठीक है। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी मेरे पाम को, पाम मसल्स को, पाम न्यूरॉन्स को, और उसने मुझे मेरे मसल मूवमेंट में हेल्प की, राइट, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके भी ब्रेन के साथ कोई इश्यूज होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, वो उनके साथ बेसिकली यही होता है कि ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पैरालिसिस, when person get paralysis, what happens, their brain का कुछ पार्ट या कोई ना कोई एक दो नर्व्स या कुछ सेंसेशंस उनके बॉडी के वर्क नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो उसकी नस है, या तो उसमें से रिसेप्टर नहीं वर्क कर रहा होता, रिसेप्टर इज द पार्ट जो रिसीव कर रहा है मैसेज, या फिर जो मैसेज पहुंचा रहा है वो पार्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा होता है। दिस इज वाई उन लोगों को लाइक दे कैन नॉट मूव, और समटाइम्स सम पार्ट ऑफ द बॉडी, कभी कभी आपके जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो जैसे आपकी मम्मी है या आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कभी कभी कंप्लेन करते होंगे कि मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है, बट आई कैन नॉट हेयर प्रॉपरली। they say these things. Sometimes they also, a few people also say कि मुझे यार कुछ याद नहीं रहता, especially the old age people, they complain about their memory a lot, कि मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनका जो न्यूरॉन सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूमन बॉडी। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी भी बड़ी हो रही है, और वैसे वैसे आपकी बॉडी के जो हर पार्ट्स हैं वो उनकी भी एज हो रही है। तो देर आर चांसेस कि आपकी बॉडी में से लाइक जो हेलो, am I audible? Yes, ma'am.
Yes, 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 ma'am. you are, Tanya, you are audible. ओके सो या तो देर आर चांसेस कि उनकी बॉडी में से जो सेंसेशंस वाला पार्ट है या जो रिसेप्टर वाला पार्ट है वो वर्क ना कर रहा हो. दिस इज़ वाई दे कैन नॉट हेयर प्रॉपरली. समटाइम्स वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमको ये वाले पार्ट में कुछ भी फील नहीं होता, मैं उसको दबाऊं दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. ऐसे भी कंप्लेंट्स आपको ओल्ड एज पीपल के साथ आती होगी, राइट. तो दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ देयर न्यूरॉन नर्वस सिस्टम एंड समवेयर और द अदर वो नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के साथ साथ व्हेन एन ओल्ड पीपल कम टू यू फॉर देयर मेमोरी और फॉर देयर बॉडी पार्ट्स कि हमारे ये वाला चीज़ सही काम नहीं कर रहा, वो वाला चीज़, यू जस्ट हैव टू काम देम डाउन बाय सेइंग कि देखो सर, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे आपका नर्वस सिस्टम भी बड़ा हो रहा है, तो उसकी भी एज हो रही है, उसका भी वर्क प्रोसेस उतना ही स्लो हो गया है जितना आपका वर्क प्रोसेस स्लो हो गया है. एक जवान आदमी के लिए 1 किलोमीटर भागना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन एक बूढ़े आदमी के लिए 500 मीटर भी भागना बहुत बड़ी बात है. भागना ही बहुत बड़ी बात होती है. क्यों? क्योंकि आपकी एज हो गई है, आपकी सारी बॉडी के जो नर्व्स हैं और जो मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से देयर आर चांसेस. लेकिन अगर ये सेम चीज़ किसी जवान के केस में हो रहा है तो फिर वी कैन स्टिल गो फॉर सम मेडिकेशंस एंड सम बेसिक ट्रीटमेंट, सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ओके, along with the therapies. Now, how does the neurotransmitters work? Neurotransmitters allow two neurons basically to communicate within each other. For example, I'll tell you, wait. तो बेसिकली ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, है ना. इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या था? इस वाले न्यूरॉन और इस वाले न्यूरॉन को इंटरेक्ट करवाना, बातें करवाना इनसे. इनके बीच में आपस में सेंसेशंस कैसे हुई? इनकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से. नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ये केमिकल प्रोड्यूस ना हो हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, ठीक है, तो क्या ये न्यूरॉन्स आपस में अगर लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी या कांटेक्ट में आएंगे भी तो इन्हें कुछ फील होगा? नहीं फील होगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है उनको बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ सेंसेशन हो रही है. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कांटेक्ट करवाना, बात Hello करवाना. and welcome to Mifati ठीक है? Tutorials. Today we are going to discuss about wait. So neurotransmitter, when neuron receives an electrical signal, किसी भी तरह का सिग्नल न्यूरॉन को मिलता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं डेंड्राइट से एक्सन्स के बीच में. ठीक है, डेंड्राइट्स क्या पार्ट था? वो ग्रीन पार्ट डेंड्राइट्स था, वो लंबा वाला पार्ट एक्सिन था. तो डेंड्राइट्स के अंदर केमिकल्स बनते हैं और वो एक्सिन के थ्रू मैसेज को पहुंचवाते हैं. ठीक है. So the neurotransmitters jumps from one neuron to another neuron to activate or deactivate a particular chain of communication. ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्टिवेट करवाने के लिए या डीएक्टिवेट करवाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कि इसको मैं एक्टिवेशन कहूँगी क्योंकि मेरे ब्रेन ने मुझे सिग्नल दिया कि मुझको अपने पाम को ऐसे ऐसे करना है टू रिलैक्स माई पाम, राइट. तो ये एक्टिवेशन है. डीएक्टिवेशन इज कि मुझे निडल लगा और मैंने फौरन उंगली वहां से हटा दिया, तो पार्ट ऑफ द चेन ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक्स फ्रॉम देयर, तो दैट इज डीएक्टिवेशन. तो इस सब की इंफॉर्मेशन या फिर इस सब को एक पहुंचा कौन रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, गॉट इट. ओके, सो द गैप बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसको हम, वेट मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. सो दिस गैप बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, इसके बीच का जो ये गैप है इसको हम साइनेप्स कहते हैं. क्या कहते हैं? Synapse. साइनेप्स. वेरी गुड. ओके, हम ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताती हूँ. उसके अलावा के जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यू कैन इधर गूगल इट और मे बी you can find it in your books as well. Okay, one of the neurotransmitter is noradrenaline, जिसको नॉरपाइनेफ्राइन भी कहते हैं. Okay,
ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये आपकी बॉडी में एक हार्मोन भी है, ठीक है। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है जब आप बॉडी के अंदर हाई प्रोटीन फूड्स खाते हो, जब आपकी बॉडी लाइक इनटेक करती है हाई प्रोटीन फूड्स को। हाई प्रोटीन फूड्स कौन कौन से होते हैं पहले तो? हु नोज कि हाई प्रोटीन किस किस में हो, किस किस चीज़ में होता है? आई वॉन्ट फ्यू आंसर्स, स्पेशली फ्रॉम द लेडीज एंड फ्रॉम द जेंट्स ऑल्सो, बिकॉज बेसिकली आज की डेट में जिम्स जाने का शौक सबको है, तो प्रोटीन के लिए सिर्फ प्रोटीन शेक लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या 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 हाई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है? कौन कौन से फूड्स हाई प्रोटीन देते हैं आपको? वन बाय वन, वन बाय वन। ओके, पारू 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 फर्स्ट, पारू गिव मी योर आंसर। Eggs. एग्स, ओके। नीलू? Meat. Good. This Karuna? Poultry food, chickpeas, legumes. Okay. Parvati? मैम मिल्क, पनीर, कर्ड। बेसिकली जब आपके जब आप हाई प्रोटीन लेते हो तो आपकी बॉडी में से एक एमिनो एसिड्स बनते हैं, एमिनो एसिड जिसको हम टायरोसाइन बोलते हैं, ठीक है। वो आपकी बॉडी के किस पार्ट में बनता है? एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है, जब ये आपने हाई प्रोटीन फूड खाया, हाई प्रोटीन फूड से आपकी बॉडी को एमिनो एसिड मिला टायरोसाइन के नाम से, और वो आपके एड्रिनल ग्लैंड में टायरोसाइन बना और वहाँ से फिर आपको मिला नॉरएड्रेनालाइन, ठीक है। सो इट बेसिकली वेयर डज वी प्रोड्यूस नॉरएड्रेनालाइन? इन योर एड्रिनल ग्लैंड। तो क्या होता है, काम क्या होता है नॉरएड्रेनालाइन का? नॉरएड्रेनालाइन का काम ये है कि जब आप एक्साइटेड हो बहुत ज़्यादा, या जब आप शॉक्ड हो, या जब आप मतलब एक वो वाला सेंसेशन जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत अमेज्ड हो रहे हो, लाइक एक्साइटमेंट, शॉक हो जाना, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें आप उसके में जो रीजंस हैं वो ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उस टाइम पे ये वाला केमिकल प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अचानक से मेरे घर से कोई आया, मैं उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो गई, तो माई बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग नॉरएड्रेनालाइन बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटमेंट। तो द केमिकल produced while being excited or while being shocked or something similar situation, this particular chemical is being produced. Also, this is the reason of panic attacks. जब किसी को पैनिक अटैक आ रहे होते हैं तो नॉरएड्रेनालाइन बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसीलिए वो उनको पैनिक अटैक आ रहे होते हैं। तो व्हेन पीपल विद पैनिक अटैक्स, उनको जो साइकेट्रिस्ट हैं या फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं, अगर वो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर वो ट्रीटमेंट या थेरेपीज दे रहे हैं उनको, तो वो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए देते हैं कि उनको बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये केमिकल की प्रोडक्शन को कम करना है। तो जब पैनिक अटैक आता है तो जो मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं वो इस केमिकल को लिमिट करने के लिए ही दी जाती हैं, ठीक है। उनका कई बार हाई प्रोटीन फूड्स भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉरएड्रेनालाइन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो अगर उन्हें हाई प्रोटीन नहीं मिलेगा तो एमिनो एसिड्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ये केमिकल प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी में, ओके। सो दिस इज़ इट अबाउट बायोलॉजी। ये एक एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर्स के, बाकी देयर आर लॉट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड sometimes some other time we'll discuss about these. That's it for no, that's it for this particular session, like for the biology part.